Okay, so first of all, very good morning to all of you guys. Today we are covering a topic, scale of codes. This topic is after completing this topic, we are completing our unit 1 from our syllabus, right? So, in the last lecture, we were seeing the vernier scales, and first of all, I want to recall some things that three type of scale we studied, that uh, the reducing scale, full scale, and enlarging scale, right? Three type of scales. This plane scale, diagonal scale, and vernier scale are not the type of the scale. These are the method. These are the methods to draw the scales, right? So if a question comes in exam that what are the types of scales? Hello, please off your mics. So if question comes in exam that write the different types of scale, then you have to type the three types, that reducing scale, full scale or normal scale, and enlarging scale. Reducing scale means actual drawing is big and we are drawing in small sheet, right? For example, any बिल्डिंग, कोई अगर बिल्डिंग है उसका अगर हम ड्राइंग करते हैं शीट पे, तो ओरिजिनल बिल्डिंग का डायमेंशन बहुत बड़ा है, उसको हम शीट पे ड्रॉ करते हैं, तो वो है रिड्यूसिंग स्केल. फुल स्केल मीन्स जो डायमेंशन है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के वही सेम डायमेंशंस के साथ हम ड्राइंग करते हैं, वो ओरिजिनल स्केल या नॉर्मल स्केल. एंड थर्ड टाइप इज एनलार्जिंग स्केल, मीन्स अगर कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है उसको हम अगर एनलार्ज करके दिखाते हैं तो वो है एनलार्जिंग स्केल, राइट? ये सबको समझ में आ गया? So if you want to write the definitions of full scale and enlarging scales and reducing scales, then you can write it. I hope you have pen and paper with you, right? These are the definitions. डायमेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूसिंग स्केल का डायमेंशन यह है, मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया था, फिर भी एक बार लिखवा रहा हूँ क्योंकि गलती ना हो. डायमेंशंस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिड्यूस्ड टू accommodate on the standard size drawing sheet. This reduction creates a scale of reduction ratio, which is generally a fraction. Such a scale is called reducing scale, right? एंड रेशियो जो है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं. सिमिलरली, इन द केस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट, डायमेंशन मस्ट बी इंक्रीजेड फॉर अबव पर्पस. अब यहाँ पे देखो इस तरीके से डायमेंशन का लिखा है, बट उसकी जगह पे आपको अगर डेफिनेशन क्लियरली लिखनी है तो लिख सकते हो, द ड्रॉइंग विच आर ड्रॉ वन. आपको अगर साथ में लिखना है यू कैन राइट इट. Definition for enlarging scale, you can write it like I am saying, that a drawing which are drawn bigger than, bigger, bigger than actual size of the object. वापिस रिपीट कर रहा हूँ, द ड्रॉइंग विच आर ड्रॉन बिगर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्केल यूज्ड इज सेड टू बी एनलार्जिंग स्केल. एनलार्जिंग स्केल का अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हैं 2:1, 5:1, 10:1,
20:1, 15:1. इज टू मीन्स डबल डॉट्स, यहाँ पे आपको दिखाया है मैंने, राइट। इफ वो है 1:1 स्केल है तो फुल स्केल हो जाएगी, राइट। तो फुल स्केल का डेफिनेशन ये है, ड्रॉइंग्स ड्रॉन ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड फुल साइज ड्रॉइंग, राइट। अगर कोई ड्राइंग सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो वो फुल स्केल है। इफ द ड्राइंग इज ड्रॉन बिगर देन द एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देन इट इज enlarging scale, and a drawing which are drawn smaller than actual size of the object then the scale used is said to be reducing scale, राइट। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तीनों की तो इस तरीके से आप एग्जाम में टाइप लिख सकते हो। वापिस एक बार रिपीट करता हूँ, फुल स्केल की डेफिनेशन, ड्राइंग ड्रॉन एज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हेलो, someone speaking but I don't know what is he trying to say because I don't have, okay, वापिस से रिपीट करता हूँ, कंटिन्यू। फुल साइज स्केल की डेफिनेशन, ड्राइंग्स ड्रॉन ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड फुल साइज ड्राइंग एंड स्केल यूज्ड फॉर दैट इज फुल स्केल, राइट। Enlarging scale की definitions, the drawing which are drawn bigger than the actual size of the object, then scale used is said to be enlarging scale, right? And reducing, for the reducing scale, the drawing which are drawn smaller than actual size of the object are said to be reducing scale, right? तो ये तीन है वो मेन टाइप है स्केल की। एंड प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल जो हम यूज करते हैं वो मेथड्स है स्केल ड्रॉ करने के लिए, राइट। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू start the last topic of the unit, that is scale of chords, right? So now first of all, how to construct scale of chord, right? अब उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हो मैंने स्टेप्स यहाँ पे आपको दिखाए। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ 90 डिग्री विथ ओ ए रेडियस। कोई अगर सर्कल है 360 डिग्री, उसका अगर 1/4 पार्ट हम लेते हैं, 1/4, राइट, 90 डिग्री एंगल तक का, तो वो जो सेक्टर है वो हमें ड्रॉ करना है 90 डिग्री एंगल वाला, जिसमें हम सेंटर पॉइंट सर्कल का जो रहेगा उसको पॉइंट ए देंगे एंड देन रेडियस जितनी है वहां पे पॉइंट ए, राइट। नाउ every 10 degree you have to mark points, right? So there will be a 9 points of 10 degree, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, right? सबको समझ में आ रहा है? एक और बार पूछता हूं, प्लीज आंसर। Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली आपको करना क्या है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, फुल सर्कल नहीं ड्रॉ करना, उसका 1/4 पार्ट बनाना है जिसमें कन्वीनियंट डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल 10 डिग्रीज के डिस्टेंस पे आपको इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करना है एंगल के हिसाब से, राइट। आपके पास प्रोटेक्टर है, उसकी हेल्प से आप इजीली 10 डिग्रीज डिवाइड कर सकते हो, राइट। एंड ईच पार्ट को इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। किस तरीके से? टेक ए पॉइंट एज अ सेंटर, टेक ए पॉइंट एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क from the 10 degrees, 20 degrees, 30 degree, 40 degree, like this, right? And up to 90 degrees.
समझ में आ रहा है? You have to draw an Yes, arc. sir. Okay. Now ये जो लाइन है जो बाहर चली गई है उसके लिए आपको लाइन जो है वो एक्सटेंशन करनी है, राइट? एक्सटेंड कर दीजिए AO लाइन को जहां तक आपका 90 डिग्री का कोड जो है वो आया है, राइट? नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ rectangular shape below this line, right? And extend the arcs reached on the line on the rectangle like this, right? And give a number 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, right? This is the scale of chords, right? अब उसके बीच में भी अगर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अगर 5 डिग्रीज के डिफरेंस चाहते हो तो बना सकते हो, राइट? हाँ बोलिए। सर वो लास्ट में जो आपने आर्क्स बनाने को बोला ना, वो मतलब वो राउंडर से ही बनाना है हम? यस, राउंडर से। आपको ए पॉइंट को सेंटर रख के हर एक 10 डिग्रीज का जो पॉइंट आपने एनोट किया है उसको वहां से रेडियस में आर्क बनानी है। ओके सर। राइट? यस सर। और जो आर्क नीचे लाइन पे पहुंचेगी वहां पे आपको उसको नंबरिंग देना है 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 90, राइट? यस सर। सो दिस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ कोड्स। अब इसका क्या यूज होता है और क्यों यूज होता है वो हम अब समझेंगे। ये पहले मैंने आपको कंस्ट्रक्शन जो है स्केल ऑफ कोड्स का वो समझा दिया है, किस तरीके से स्केल ऑफ कोड्स जो है बनाया जाता है। नाउ एज अ कोड, जो यहाँ बहुत सारी लेंथ दिख रही है आपको, अगर देखा जाए तो नीचे एक स्केल मिल गई है, राइट? बट डायमेंशन थोड़े आपको ऐसा लगेगा 0 to 10 है वो बड़ा है, 20 उससे थोड़ा कम, फिर 90 तक जाएंगे तो डायमेंशंस मेजरमेंट्स कम होते जाएंगे। बट ये किसके लिए है? ये मेजर किसको करता है? ये अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है उसको मेजर करने के लिए ये स्केल ऑफ कोड का यूज होता है, राइट? एज मैंने यहाँ पे नीचे डेफिनेशन भी लिखी है, एज कोड्स लेंथ्स are used to measure and construct different angles, it is called scale of chords, right? ये जो सारे कोड है उसकी लेंथ है उसको यूज करके हम कोई भी एंगल को मेजर कर सकते हैं एंड कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं कोई भी एंगल, राइट? अब वो कैसे कर सकते हैं मेजर एंड किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम आगे देखते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं प्रॉब्लम लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, I had taken one problem. Can anyone say what is the problem number 12 says? Because I can't read it on my screen. Construct any triangle and measure its angles by using scale of chords. Yes. Okay. So हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है एंड उस एक जस्ट मिनट। हेलो, हाँ सर है। So we have here our problem that construct a triangle and Chetan sir and measure its sir यहाँ बोला है सर तुमने सीधा construct a triangle and measure its angles, right? So फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा? एक स्केल ऑफ कोड। तो लास्ट टाइम जो लास्ट स्लाइड में जिस तरीके से हमने स्केल ऑफ कोड कंस्ट्रक्ट किया था इस तरीके से हम अपना पूरा स्केल ऑफ कोड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे अप टू 90 डिग्री एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर ट्राइंगल, राइट? तो
मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख दिया है, फर्स्ट प्रिपेयर स्केल ऑफ कोड फॉर द प्रॉब्लम. सो for any problem of scale of chords you have to construct one scale of chords. Then with the help of these chords you can construct any triangle and any angles, right? Now for the triangle, in the triangle we can say that there are three angles, right? मेजर एंगल्स एक्स वाई एंड जेड. सपोज कर लेते हैं कोई भी 3 एंगल्स होंगे ट्राइंगल में, एक्स वाई एंड जेड. नाउ सबसे पहले हम एक लाइन ले लेंगे. एक इस तरीके से कुछ ट्राइंगल हो सकता है, राइट राइट, एक्स वाई एंड जेड. अब नाउ वी वांट टू measure the angles of this triangle, right? So now what we will do, first of all यहाँ पे जो ए एन ओ लाइन है, हमारी लाइन ए ओ, वो जो लेंथ है वो हम मेजर करके जो कंपास से पॉइंट ओ टू ए, हम यहाँ पे ओ टू ए एक लाइन को मेजर कर लेंगे, राइट? एंड नाउ उसको पॉइंट ए से हम एक आर्क बनाएंगे एज ए टेकिंग सेंटर पॉइंट ओ. वापिस से मैं आपको समझा रहा हूं, यू हैव टू टेक सेम डिस्टेंस एज ए ओ लाइन फ्रॉम द स्केल ऑफ कोड. You have to mark point A and O on this triangle on the baseline, and then taking point O as a center you have to construct one arc from the point A, right? And second point जो आपको मिलता है उसको नेम दीजिए point B, right? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नाउ ये जो आपको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है आपको. ज्वाइन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विद द स्ट्रेट लाइन. एंड वो जो मेजरमेंट है, फॉर एग्जांपल आपको जस्ट सेकंड, मैं लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ. यस, पॉइंट ए एंड बी को एक स्ट्रेट लाइन से अगर आप ज्वाइन करते हो, देन वो स्ट्रेट लाइन जो है उसको कंपास से मेजर कीजिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड वो यहाँ पे रखिए, पॉइंट ए से रखिए और पॉइंट बी उसका मेजरमेंट कहाँ आ रहा है वो देखिए, चेक कीजिए. तो आपको उसका यहाँ पे जो नंबर्स मिल रहा है वो आपका एंगल से, राइट? वापिस से समझा रहा हूँ, टेक ए बी कोड in the compass and place on the scale of chords from 0 से स्टार्ट करना है आपको, और B पॉइंट कहाँ तक जाता है वो कंपास में आपको देखना है. इट विल गिव वैल्यू ऑफ एंगल एट x पॉइंट. x पॉइंट की एंगल क्या होगी वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल दिस विल कम on the 30 point, then the angle of x is 30 degree, right? सेम मैंने वापस आपको ये पूरी स्केल जो है यहाँ पे रख के आपको दिखाई है कि अगर वो 30 पॉइंट तक जाती है, देन द डिग्री ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री, राइट? नाउ फ्रॉम पॉइंट y, अगर y से देख रहे हैं तो सेम a एंड o का जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस हम मार्क करेंगे फ्रॉम पॉइंट y टू सम एनी डिस्टेंस, राइट? सो उसको हम नंबरिंग देंगे O1 एंड A1, राइट? नाउ सेम प्रोसीजर, जो भी डिस्टेंस है वहां पे O को सेंटर रखिए और A से एक आर्क लगाइए अपवर्ड साइड, और जहां पे वो लाइन पर टच करता है वहां पे B1 नंबर दीजिए. एंड वो जो B1 एंड A1 लाइन है उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कीजिए, एंड देन यू विल गेट द एंगल ऑफ A1 एंड B1 लाइन, राइट?
समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलिए। अगर हम ये जो आर्क बना रहे हैं वो अगर कभी ट्रायंगल से बाहर चली गई तो? हाँ देखो, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल जो है उसको डायमेंशनिंग नहीं दिया है कि इतना mm का ट्रायंगल लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो B1 जो है वो थोड़ा सा ट्रायंगल के अंदर ही है, बट तो मैंने क्या किया, उस ट्रायंगल को एक्सपांड कर दिया। देखो उस ट्रायंगल की लाइन है उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं आगे, यहाँ पे मैंने दिखाया है एक्सपांड करके थोड़ा सा, राइट। तो आप ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो एंगल उतना ही रहेगा, तो आप उसको लाइन को एक्सपांड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ट्रायंगल की मेजरमेंट्स पहले से पता है, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल 100 mm लॉन्ग है, ये O1 to O जो डायमेंशन है वो आपको पता है 100 mm है, तो फिर उस हिसाब से आपको A and O का जो आप कोड कंस्ट्रक्ट करते हो वो आपको छोटा करना पड़ेगा, राइट। ओके, राइट। सो नाउ हमें दो पॉइंट मिल गए, पॉइंट x एंड पॉइंट y का एंगल मिल गया, एक 30 डिग्री एक 55 डिग्री है। तो आपको ट्रायंगल का पता ही है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, राइट। सो फ्रॉम द 180 इफ यू subtract the sum of this 55 plus 30 degree, then you will get the angle B, right? This third angle you will get accordingly, right? So 180 minus in the counts of 55 plus 30, so you will get the 95 answer. So the angle, third angle Z is equal to 95, right? प्लीज अगर आपको ड्रॉ करना है तो कर लीजिए। ओके सर। इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, जिनका बाकी है उन रिकॉर्डिंग में आज ही यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, उसमें से देख के भी बना सकते हैं आप स्टॉप करके। एंड यस, ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल। जो मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर के बाद ही आपको जो एक यूट्यूब चैनल की लिंक भेजी थी, उस लिंक पे आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। हर एक का अलग अलग लिंक नहीं भेजूंगा, सारे लेक्चर्स का, सारे लेक्चर एक ही लिंक में अवेलेबल है सब। उस जो मैंने फर्स्ट लेक्चर के बाद आपको एक यूट्यूब लिंक भेजी थी उसमें ही सारे लेक्चर्स रहेंगे। मैं काम करूँगा वापस आज आप सब लोगों को वो लिंक वापस से शेयर कर दूंगा। अगर एनी person or any students are joining late from the first day, then they can see it, right? All the lectures are available on the YouTube channel। लिंक जो है मैंने आपको पहले भी शेयर की है एंड ऑल्सो अभी वापस आपको शेयर कर दूंगा। सर हाँ बोलिए। सर ये पहले ट्रायंगल या वो ऐसे ही लेना है कि मेजर यस करके लेना है? यस यस, ट्राइंगल जो है वो रैंडम ट्राइंगल उठाया है हमने। we had ओके सर। taken random triangle and then we had measure that three angles of the triangle। अगर ट्रायंगल हमने मेजर करके बनाया है देन उसके ट्रायंगल के एंगल को हमें मेजर करने की जरूरत है क्या है, राइट? अरे सर हाँ, ये ए पॉइंट और A1 पॉइंट भी ऐसे ही लिया है ना? नहीं नहीं नहीं, ए पॉइंट एंड A1 पॉइंट इज इक्वल टू पॉइंट O एंड पॉइंट A। ये जो डिस्टेंस है पॉइंट A एंड पॉइंट O का, वो सेम डिस्टेंस यहाँ पे मैंने लिया है, ओके सर। राइट। रिपीट द सेम प्रोसेस फ्रॉम O1। मैं दूसरे पॉइंट्स वापस A एंड O नहीं ले सकता, दैट्स व्हाई आई हैड टेकन O1 एंड A1, राइट। बट वो मेजरमेंट जो है सेम है, ये स्केल ऑफ कोड की तरह ही, राइट। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड
to next problem of scale of chord. Problem is construct 25 degree and 115 degree angles with the horizontal line by using scale of chords, right? So first of all, what we have to do, construct a scale of chord. So like this you have to construct our scale of chords up to 90 degree, and now we want to construct 25 degree and 115 degree angles with the horizontal line. Now, so first of all, we are making one horizontal line, right? Now horizontal line को मैं लूंगा AO पॉइंट से ही, वो जो horizontal line है सेम डिस्टेंस मेजरमेंट में यहाँ पे ले लूंगा. Then I will take one arc from the point A to random distance, taking center point A, right? So अभी मुझे ये आर्क कहाँ तक लेके जानी हो नहीं पता है, तो that's why I am taking random distance, right? Now what I have to do, construct a straight line of same distance of 25. यहाँ पे मुझे लेना है ये जो ये लाइन है, यहाँ पे मुझे 25 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है. देन व्हाट आई हैव टू डू, टेक अ कंपास एंड देन मेजर chord length of 25, right? 0 to 25, 0 to 25 mark from the scale of chord, and then that straight line I have to draw here from point A to point B. अब point B जहाँ ये आर्क पे 25 mm जो मेरा मेजरमेंट है वो कट करता है, वहाँ पे लेना है, and then point B उसको दे देना है, right? Take a chord length of 25 degree angle from scale of chord in the compass, and from A cut the arc at point B, right? Join B and O. उसके बाद जो ये पॉइंट B मिला है उसको O पॉइंट से ज्वाइन कर देना है. सो आपका जो एंगल होगा वो एग्जैक्टली 25 डिग्री एंगल रहेगा, राइट? सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज सोल्व. नाउ अगर आपको चेक करना है चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया है 0 to 25 डिग्री का मेजरमेंट्स जो है उसको सेम आपको मेजरमेंट लेना है. नाउ फॉर द सेकंड chord of 115 you have to make one also horizontal line. Now but here we can see that we had degrees up to 90 degree, right? And what we have to construct 115 degree. So what we can do, we can subtract 115 degree from 180. So we will get 75 डिग्री एंगल्स. अगर 180 डिग्री का एंगल हम लेते हैं उसमें से 115 का अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिलेगा 75 डिग्री, राइट? तो अगर हम 75 डिग्री का एंगल्स बनाते हैं तो पीछे का जो एंगल्स रहेगा वो एग्जैक्टली 115 डिग्री एंगल्स रहेगा. सो हम क्या करेंगे, 75 डिग्री एंगल जो है बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक स्ट्रेट लाइन AO and C, लॉन्ग लाइन लेंगे जिसमें AO का डिस्टेंस भी हो प्लस थोड़ा एक्सटेंड करके उसको एक C पॉइंट हम दे देंगे, राइट? वो क्यों दिया है आपको बाद में समझ में आएगा. एंड देन व्हाट वी विल डू, we will take a center point O and construct one arc from point A to a random distance. And then what we will do, we will take the compass and measure 75 degree. 75 degree means 0 to 75 from this scale, right? Take a measurement of 0 to 75 degree distance from in the compass and cut the arc at point B1 from point A like this.
राइट। ए से आपको एक कंस्ट्रक्ट करनी है स्ट्रेट लाइन, ये लाइन थोड़ी सी यहाँ पे टेढ़ी हुई है, बट कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से करना है। देन उसको गिव पॉइंट जो आपको नया मिला है उसको बी पॉइंट उसको आप दे सकते हैं, एंड देन जॉइंट इट विद द पॉइंट ए। सो इनर साइड जो है एंगल वो आपको 75 डिग्री मिला, जिस तरीके से हमने 25 डिग्री लिया था उसी तरीके से 75 डिग्री लिया है। बट ये जो 75 डिग्री हमने लिया है उसके नेक्स्ट वाला जो एंगल रहेगा वो 150 रहेगा। क्यों? टोटल जो स्ट्रेट लाइन है उसका अगर टोटल एंगल हम मेजरमेंट करते हैं तो 180 होता है। सो अगर ये एंगल इनर साइड एंगल अगर हमें 75 मिला है, देन आउटर साइड एंगल विल बी what obviously of none other than 150 डिग्री। सर हाँ बोलिए। 105 आएगा 105 क्यों आएगा? सर। 115 प्लस 75 ओके 190 होता है। सॉरी ओके, माय मिस्टेक। सो व्हाट वी विल हैव टू डू, यहाँ पे आपको 65 डिग्री लेना है, राइट। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 75 डिग्री नहीं आएगा 65 आएगा, राइट। सॉरी। So what we have to do, take a 65 degree, right। 65 डिग्री का अगर आप एंगल बनाओगे तो बाकी का जो एंगल है वो 150 का एंगल 15 का एंगल आ जाएगा, राइट। मेन पर्पज है आपको सिखाना। आई होप आप समझ गए हो कि अगर 90 डिग्री से ऊपर का अगर कोई एंगल है तो उसको किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। इसमें कुछ डाउट है? यहाँ पे 75 की जगह पे 65 डिग्री वाला जो एंगल है वो आपको मेजर करके उसकी लाइन बनानी है, राइट। ओके, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया है। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस एंगल्स देन यू कैन ड्रॉ इट। आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 5 मिनट्स। प्लीज पूरा अगर नोट करना है तो आप कर सकते हो। आप सब लोगों को समझ में तो आ रहा है ना इंजीनियरिंग ड्राइंग? Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओके, जस्ट कंप्लीट द ड्राइंग।
ओके, आई होप सबने कंस्ट्रक्शन एंड ड्राइंग जो है वो कम्प्लीटली ड्रॉ कर लिया है. सो हियर आवर यूनिट नंबर 1 इज कंप्लीटिंग. पूरे यूनिट में अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे कहीं पे भी. कुछ अगर आपको कुछ नहीं आया है, कुछ बाकी रह गया हो आपका, अगर कुछ बाकी रह गया है तो आप पूरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो यूट्यूब पे. आज का लेक्चर जो है मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप इजीली ये भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं. राइट? ओके. सर नाउ यूट्यूब चैनल लिंक किधर मिलेगा? यूट्यूब चैनल लिंक मैंने आपको आपका जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैंने आपको शेयर कर दिया था बहुत फर्स्ट लेक्चर के बाद ही. आज एक और बार मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा वापस. आप इजीली वहाँ पे से वापस से देख सकते हो. वो लिंक एक ही है, सेम लिंक पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. राइट? तो हर एक लेक्चर्स का अलग अलग लिंक नहीं आएगा, एक ही लिंक पे सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे चैनल पे आप देख पाओगे. Now, after this, we will starting our next unit, engineering course. So थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ दे देता हूँ आपको. What is engineering course and what are these classifications and उसकी definitions, right? थोड़ी बहुत. So first of all, what is engineering course? Anyone knows? What is engineering course? No. Right? So engineering curves are generally used to define the shape or the profile of the objects. Right? किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर शेप को हमें डिफाइन करना है तो शेप को डिफाइन करने के लिए जो हम कर्व्स का यूज करते हैं उस कर्व्स को हम इंजीनियरिंग कर्व्स बोलते हैं. अब जो सारे कर्व्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के में होते हैं और अलग अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होती है. कर्व्स की अगर बात करूँ, फॉर एग्जांपल सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है. राइट? साइक्लोइड, इनवोल्यूट, स्पाइरल, बहुत सारे टाइप के इंजीनियरिंग कर्व्स है. राइट? सो क्लासिफिकेशन, आपको रो क्लासिफिकेशन अगर लिखना है इंजीनियरिंग कर्व्स का तो आप टाइप लिख लीजिए, राइट डाउन engineering classification of engineering curves. राइट? यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन दिया है वो कॉनिक सेक्शन का ही क्लासिफिकेशन है, टोटल क्लासिफिकेशन अलग से है. सो you may write it as a different engineering curves can be classified in the four main type. Right? First one is a conic सेक्शन. राइट? CONIC, कॉनिक. कॉनिक के अंदर अलग अलग 5 टाइप के शेप्स रहते हैं. उसमें से आप लिख सकते हो, फर्स्ट वन इज अ ट्राइंगल, सेकंड इज अ सर्कल, थर्ड इज इलिप्स, फोर्थ इज पैराबोला एंड फिफ्थ वन इज हाइपरबोला. सो इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के अंदर और अलग अलग मेथड्स है उसको ड्रॉ करने की, जो मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. बट मेनली 5 टाइप्स ऑफ कॉनिक कर्व्स आर देयर. फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड सर्कल, थर्ड इलिप्स, फोर्थ पैराबोला, फिफ्थ हाइपरबोला. राइट? सो अंडर कॉनिक सेक्शन देयर आर 5 सब टाइप्स. राइट? नाउ सेकंड मेन टाइप, साइक्लोइडल कर्व. मैं आपको काम करता हूँ. यस, इन द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, साइक्लोइडल कर्व्स, CYCLOID, साइक्लोइड, साइक्लोइडल कर्व्स. उसके अंदर अलग अलग 3 टाइप रहेंगे. साइक्लोइड, सेकंड वन इज epicycloid and third one is hypocycloid. Epicycloid, EP
cycloid and third one is hypocycloid, right? ट्रोचोइड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो टाइप नहीं है, वो आपको मैं मेथड है एक, वो आपको समझाऊंगा किस तरीके से उसको ड्रॉ करना है, राइट? ये सारी जो है वो टाइप्स नहीं है, वो मेथड्स मैंने दिखाई है यहाँ पे, राइट? टाइप्स जो है मैं आपको बोल के लिखवा रहा हूँ. सो फर्स्ट वन इज कॉनिक, सेकंड वन इज साइक्लोइड, थर्ड वन इज इनवोल्यूट, INVOLUILUTE, right? Involute. In this type there are four subparts: involute of line, involute of circle, involute of square and involute of polygon, right? इन्वोल्यूट के अंदर 4 सब पार्ट्स है: इन्वोल्यूट ऑफ लाइन, इन्वोल्यूट ऑफ सर्कल, इन्वोल्यूट ऑफ स्क्वायर एंड इन्वोल्यूट ऑफ पॉलीगॉन. एंड द लास्ट वन इज स्पाइरल. स्पाइरल के अंदर आर्किमिडियन स्पाइरल एंड लॉगरिथमिक स्पाइरल. आर्किमिडियन स्पाइरल का स्पेलिंग लिख लीजिए, ARCHEMEDIAN, Archimedean spiral. And then second one is logarithmic spiral, LOGARITHMIC, logarithmic spiral. So basic classification of engineering curves are: first, basic 4 classification: conic, cycloidal, involute and spiral. Under that there are some sub parts are there, like in the conic, triangular, circle, ellipse, parabola and hyperbola. Under the cycloidal part, cycloid, epicycloid and hypocycloid. Under the involute type, sub parts are involute of line, involute of circle, involute of square, involute of polygon, and under the spiral, Archimedean spiral and logarithmic spiral. And you can also see the one type above this, the helix. Helix is the complex one, so it will comes in the complex parts, so it will not come under the basic classification of engineering curves, right? So now we will continue with the first one is conic. Now in the conic section, first of all 5 सब पार्ट्स आर देयर. ट्रायंगल, ट्रायंगल्स आप सब लोग को पता है किस तरीके से बनते हैं ट्रायंगल, विद द 3 एंगल्स, राइट? और total sum of these 3 angles should not exceed from 180 degree, right? 180 degree सम होना चाहिए तीनों एंगल का, तो उसको हम ट्रायंगुलर शेप बोलते हैं, राइट? And then second one is circle. अगर first of all if you want to write, then you can write in the triangular section, when the cutting plane contains apex of the cone and the section will be triangular, right? समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या बोला है आप सबको, बट वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा, इसलिए मैंने अभी ऐसे ही आपको समझाया है कि ट्रायंगुलर सेक्शन में क्या होता है, 3 एंगल्स होते हैं, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, राइट? देन सेकंड वन इज द सर्कल. सर्कल में एक रेडियस होती है एंड एक सेंटर पॉइंट होता है, और दोनों को मिला के हम पूरा एक लोकस बनाते हैं पॉइंट का कोई, और उसको सर्कल बोलते हैं, राइट? नाउ इट कम्स अप टू इलिप्स. इलिप्स के अंदर क्या होता है और किस तरीके से होता है, राइट? वो हम देखते हैं एक कोन की हेल्प से. फॉर एग्जाम्पल
इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला जो है वो कॉनिक सेक्शन के अंदर आते हैं। उसको हम एक कोन को कट करके उसके कटिंग प्लेन की हेल्प से उसको हम दिखाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एक कोन है 3D कोन, जिसकी साइड जो है व्यू हमें दिख रहा है, और उसको मैं अगर इस तरीके से काटता हूं, राइट, सेक्शन प्लेन थ्रू जनरेटर, अगर वो कोन का जो सेंटर लाइन रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, जनरेटर। सो इफ आई एम कटिंग द प्लेन ऑफ कोन फ्रॉम थ्रू द जनरेटर्स, देन जो आपको एक रिमेनिंग कोन मिलेगा उसके अंदर एक शेप मिलेगा, वो जो शेप है उसको हम बोलते हैं इलिप्स, राइट। ये जो शेप मिला है उसको हम इलिप्स बोलते हैं। नाउ अगर इसी कोन को हम इस तरीके से काटते हैं फ्रॉम विद द पैरेलल ऑफ द एंड जनरेटर, जनरेटर मैंने किसको बोला था, जो सेंटर लाइन है कोन की उसको जनरेटर बोला जाता है। एंड द जो ये एंगुलर शेप कोन का रहता है सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं, कोन की एंड जनरेटर। सो इफ आई एम कटिंग द प्लेन with the parallel to the end generator, right, then जो आपको शेप मिलेगा, रिमेनिंग शेप ऑफ द कोन, this shape will be of the parabola shape, right. And the last one, if I am cutting the plane, section करता हूँ with the parallel to the axis, right, अगर एक्सिस के पैरेलल उसको अगर मैं कट करता हूँ, देन जो मुझे रिमेनिंग शेप मिलेगा वो शेप जो है वो हाइपरबोला रहेगा, राइट। सो आप सब लोगों को पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। आई होप 11th-12th में भी आप पढ़े हो किसको इलिप्स बोलते हैं, किसको पैराबोला बोलते हैं और किसको हाइपरबोला बोलते हैं। उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसके अंदर एक एसेंट्रिसिटी करके एक वर्ड आता है कि अगर इलिप्स की एसेंट्रिसिटी जो है वो 1 से कम रहती है, पैराबोला की इक्वल टू 1 रहती है, एंड हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो ग्रेटर देन 1 रहती है, राइट। अब मैं एसेंट्रिसिटी की बात करूं तो व्हाट इज एसेंट्रिसिटी, दिस आर द loci of points moving in the plane such that, ये जो इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला की लाइंस की बात कर रहे हैं, that ellipse, parabola and hyperbola are the loci of points moving in the plane such that the ratio of its distance from the fixed point and fixed line always remains constant, and that ratio is called the eccentricity, और उसको हम E से एनोट करते हैं, E से। So in the ellipse, eccentricity is always less than 1, and in parabola eccentricity will be the equal to 1, and in the hyperbola eccentricity will be the always greater than 1, right। अब एसेंट्रिसिटी जो है हम किस तरीके से मेजर करते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ वी विल कैलकुलेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, राइट। यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अगर इफ यू डोंट हैव प्रॉब्लम तो मैं अभी इसी लेक्चर में आपको समझा सकता हूँ, बट आई थिंक टाइम जो है थोड़ा कम पड़ेगा। सो वी विल गिव इट टू द नेक्स्ट सेशन. In the next section we will start from here
how we calculate the eccentricity of any curve, right? And then we will continue to learn how to draw a ellipse. Ellipse की 6 methods है, then 3 methods of parabola and 3 methods of hyperbola. How to construct ellipse, parabola and hyperbola. We will see all these methods to construct these curves, right? So from the next lecture we will continue with the engineering curves. Okay, so now I am stopping the recording.